Hello and welcome to News Pulse. A 12-hour Bandh called by a body of various organizations representing the minority community to protest the death of two persons during an eviction drive affected normal life in Assam's Darang district on Friday. 2 persons were killed and 20 others injured in clashes between police and alleged encroachers during an eviction drive in villages under Sipajhar Revenue Circle on Thursday. No untoward incident has been reported so far in the Bandh called by the All Minority Organizations Coordination Committee, which includes the All Assam Minority Students Union and the Jamiyat-e-Ulema among others, that began at 5 a.m. today. A police officer said that all business establishments remained closed and very few vehicles plied the roads. Security has been tightened across the district with heavy deployment in Goraikuti, Dholpur 1 and 3 villages in Sipajhar where the eviction drive was underway. A Congress delegation comprising its state chief Bhupen Bora, Rajya Sabha MP Ripun Bora, Deputy Leader of Congress Legislative Party Rakibul Hussain and other senior leaders staged a protest against the incident outside the Darang Deputy Commissioner's office in district headquarters Mangaldoy. The DGP said that the photographer of the Deputy Commissioner's office, who was seen in a viral video kicking and hitting a man allegedly shot dead by security personnel, has been arrested and booked, and he was in the CID's custody. The state government has announced a judicial inquiry into the incident by a retired Guwahati High Court judge whose name is yet to be declared. The delegation was also scheduled to submit a memorandum to Assam Governor Jagdish Mukhi through the Deputy Commissioner. Party spokesperson Bobita Sharma said. Now we have our correspondent Deep Saikia in Assam. Let's have a look at what he has to say. Hello, Deep. Hello. Hello. Hi, Deep. Are you at the site? Are you at the place right now? Or what can you give me right now about the developments? जिस तरीके से देखा जाए ये मंडे के दिन में जो हादसा हुआ था उसके बाद ये ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन ने आज 12 घंटे का बंद किया था और इस बंद देने से मंगलदोई और दरंग में काफी सारे बिजनेस प्लेसेस बंद थे। और इसके बाद आज हिमंत बिश्व शर्मा ने जो मीडिया को ब्रीफ किया उसमें एक बात उसने सीधा दोहराया है कि जितना भी हो ये जो इलीगल माइनॉरिटी कम्युनिटी का लोगों ने बहुत दिनों से सरकारी लैंड को ऑक्युपाई करके रखा था और उसको बहुत बार कोर्ट नोटिस देने के बावजूद भी वो लोग नहीं गए। और उसने ये भी बोला है कि जिन लोगों का अभी घर बारी जमीन गया है उन लोग को रीसेटलमेंट करने के लिए 6 बीघा करके जमीन उन लोग को देने के लिए बात किए जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने पहले माना भी था। लेकिन जब उस दिन लास्ट ड्यूरिंग द कोर्ट नोटिस पीरियड में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके एविक्शन के लिए गया था, वो लोग का 1000 के ऊपर प्रोटेस्ट आया था। और हिमंत बिश्व शर्मा ने मीडिया को ब्रीफ किया था, उसमें उसने साफ जाहिर किया था कि ये जो इलीगली माइनॉरिटी कम्युनिटी ने बहुत दिनों से ये जमीन को कब्जा करके रखे थे, जितना भी हो सके जैसे भी हो सके उन लोग को रीसेटलमेंट करने के लिए सीएम ने एक फैमिली के अगेंस्ट में 6 बीघा जमीन के भी व्यवस्था करने के लिए एश्योरेंस दिया था। लेकिन उन लोगों ने माना भी था, लेकिन मंडे के दिन में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको एविक्शन करने के लिए गया था नोटिस देने के बाद, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने हमला किया था, इसीलिए पुलिस ने डिफेंस में जाके फायरिंग करना पड़ा था। और ये जो अभी अपोजिशन पार्टी बोल रहे हैं, ये सारे अपोजिशन पार्टी ये जो इंसिडेंट है उसके खिलाफ है। जितना भी हो सके सीएम ने बार बार बोला है कि इसी जमीन पे 1983 के 29 जनवरी में 8 इंडिजिनियस पीपल को, पब्लिक को यही माइनॉरिटी कम्युनिटी ने बहुत बुरी तरीके से हत्या किया था, जिसमें मंदिर का पुजारी भी थे उसमें। और उन लोगों को इतना ब्रुटली उन लोगों को मारा था, उसमें मछली मारने का जो इक्विपमेंट होता है उससे बांध के कभी कोई ऐसे 8 से 9 आदमी को 1983 29 जनवरी में मार दिया था। तो उसी या बात को दोहराते हुए अभी वो नहीं बोल रहे कि ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, ऐसा कुछ है, लेकिन जो सरकारी भूमि इलीगली हिसाब से माइनॉरिटी कम्युनिटी ने ब्लॉक करके रखे हैं, उधर में सरकार का जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट आने वाला है, किसी भी कीमत में वो जमीन को खाली करना होगा। उसके लिए अभी से ज्यादा सिक्योरिटी देके उन लोगों को एविक्शन किया जाएगा, बोला हिमंत बिश्व शर्मा ने उन लोगों को वार्न किया है।
Okay, Deep, but does it justify the government being so brutal and iman aggression brad in ऐसे जाने के लिए justify ಇದು ಇದು justify होए ಇದು government ब्रा इनका कुरा दो हाँ, ऐसा उसको जब मीडिया ने उसको पूछा था कि ऐसे गोली मारना या ऐसा कुछ ब्रुटली किसी को अटैक करना ये जस्टिफाई है क्या, तो उसने बोला ये जस्टिफाई नहीं है, लेकिन अगर कोई 400 पुलिस जो उस दिन उस इंसिडेंट में उस जगह पे खड़े थे, अगर 1000 आदमी प्रोटेस्टर आके 400 पुलिस के ऊपर में हमला करेगा तो डिफेंस के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन लोगों ने पहले टीयर गैस मारा था, उसके बाद बहुत बार वार्न किया था, उसके बाद उन लोगों ने ओपन फायर किया था। और अभी जो एलए चाह रहा है, पब्लिक बोल रहा है कि गोली लगने के बाद वो मरा है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कोई सर्टिफाई नहीं किया है वो प्रोटेस्टर का शरीर में जो गोली है या प्रोटेस्टर का पैर में जो गोली लगा है उसके वजह से उसका डेथ हुआ है या कोई अलग तरीके से उसका डेथ हुआ है, वो अभी तक सर्टिफाई नहीं किया है। लेकिन इसमें देखा जाए एक ही बात है, जितना भी जो ऑपोजिशन पार्टी बोले जो बोले, हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है पुलिस के ऊपर में अगर हमला करेंगे, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो चाहे कोई इलीगल इन्फ्लेटेटर्स हो, जो भी हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इसी जगह पे 1983 में यही माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ आसाम का इंडिजिनियस 8 पीपल उसमें डेथ हुए थे बहुत ब्रुटली, लेकिन वो उसका बदला ले रहा है ऐसा बात नहीं बोल रहा है। लेकिन जो सरकारी भूमि इलीगली हिसाब से उन लोगों ने कब्जा करके रखा है उसी को किसी कीमत पे छोड़ना होगा, और जो बिलो पॉवर्टी के लिमिट है उन लोगों को 6 बीघा करके सरकारी हिसाब से उन लोगों को जमीन दिया जाएगा। लेकिन उस जगह पे अभी उन लोगों का फैमिली बोरपेटा ग्वालपारा इस सब में जितना भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी है वो लोग वो भी लाना चाहते हैं, वो सरकार कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे ये जलोंग छिपाजा ढोलपुर का बस्ती को खाली करना होगा बोला है। ओके ओके दीप, अनदर फाइनल क्वेश्चन, वेयर विल दे गो दिस डिस्प्लेस्ड पीपल, ये लोग कहाँ जाएंगे आफ्टर इनको इविक्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट इनको कोई जगह कुछ दे रहे हैं, कहाँ पे रहेंगे, वेयर विल दे स्टे? अभी ये मंगोलदोई डिस्ट्रिक्ट में जाके उधर से थोड़ा दूर जाके एडीसी के साथ बात करके डीसी के साथ बात करके एक जगह उन असम गवर्नमेंट में रीसेटलमेंट के लिए तय किए थे, उसके लिए मीटिंग भी हुए थे और एक एक फैमिली को 6 बीघा तक जमीन देने के लिए असम गवर्नमेंट राजी हुए थे। जो इंडिजिनियस बिलो पॉवर्टी लिमिट का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी पहले बहुत सालों से उधर में रह चुका है वो लोगों ने माना भी था, लेकिन ये जो मानने के बाद ये जो एग्रीमेंट होने के बाद रहने का जगह का बंदोबस्त होने के बाद उन लोगों ने जो प्लान करके ये जो हमला किया है वो बहुत सख्त रूप से उसने कंडेम किया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और मंगोलदोई में एक ऐसा जगह उन लोगों ने सरकार ने बैठाया है उसमें 6 बीघा करके एक एक फैमिली को जमीन दिया जाएगा। उन लोगों को ऐसा ना इंसाफी नहीं करेंगे बोल के सरकार ने उन लोग को देने के लिए बात भी किया था और अभी भी देंगे बोल के सरकार मंजूर है, लेकिन बाहरी डिस्ट्रिक्ट से उन लोग का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का फैमिली आने के लिए वो लोग को मंजूरी देने के लिए बोला है वो सरकार कभी भी नहीं मानेंगे बोल के साफ प्रेस मीट में बोला है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। ऑल राइट, थैंक यू दीप, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस।